3 months after accepting the recommendations made by the Ramnath Kovind-led panel, the Modi 3.0 cabinet has cleared One Nation, One Election bill today. The government is likely to table the bill in the parliament next week, and sources suggest that the government's plan is to build a broad consensus on the matter, with the bill set to be referred to the Joint Parliamentary Committee first for discussion. It is learned that the JPC then will engage in detailed talks with the representatives from all political parties to facilitate collective agreement on the proposal. Remember, the One Nation, One Election initiative was a key promise in the BJP's election manifesto. And with this bill, the central government seeks to synchronize elections for the Lok Sabha, state assemblies and local bodies, aiming to reduce the frequency of elections and the financial and the burden is concerned. The central government also claims that it will improve governance in the country. However, the bill faces a strong opposition, with the leaders from the other camp arguing that it is impractical and could lead to an erosion of federalism. The opposition also views the plan as an attempt by the Modi-led central government to centralize power and undermine states' autonomy. I oppose this One Nation, One Election idea. It's against parliamentary democracy. In parliamentary democracy, there is no such thing as fixed terms. A government is only there until it has the majority of the House, be it the Assembly or Parliament. This requires many constitutional amendments, which I don't think this government has the numbers to get it through. They're just doing a little bit of kite flying, but this won't pass. And secondly, we are about 30 states, so we have about 3 or 4 elections every year, which is in fact good for India. In fact, this gives the opportunity to people to vent out their opinions, their feelings, and also keeps the political parties on toe. Because if there are no elections for 5 years, political parties will take a very laid-back view and they will not reach out to the people. It has to be tabled in the parliament. It has to be discussed in the parliament. We will wait for the comprehensive bill to be placed so that we know how are they looking at mobilizing manpower, EVM machines, VVPAT machines, the expenses that will be incurred, and is it anyway cost beneficial as compared to what we are seeing? Is it constitutionally a valid bill? So all those discussions will happen sooner or later. However, we've seen that many cabinet decisions are taken. However, it doesn't find the approval of the parliament and it goes into a select committee. So we will wait for what happens next. However, the question does arise that they will have to also get it ratified from every state assembly. Have they done wide-ranging stakeholder consultations? Otherwise, it becomes a political tool for the Bharatiya Janata Party. ONOP, One Nation, One Poll, कैबिनेट से अप्रूव हो गया है. What is Kovind Saab's report? It is not in the domain of the public, and I don't know what is there. Until unless that report comes before us, I can't comment. एक साथ चुनाव कराने से खर्चे कम आएंगे. क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है. जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा. लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है. एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अगर वो सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव होता है. आप न सरकार का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं. तो अगर कोई सरकार अल्पमत में आई और गिरी तो फिर वो सरकार कैसे चलेगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे. और मुझे लगता है कि ये एक खरीद फरोख्त को देश भर में बढ़ावा देने की दूसरी शुरुआत होगी. My colleague Himanshu is joining me on the phone line to get us more details. Well, Himanshu, ये बताइए कि जहां तक वन नेशन वन पोल की बात है, इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाया है. क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायलॉग प्रोसेस है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ में, ताकि वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर में एक टॉकिंग टेबल पे आए और इनकी जो भी कारण की वजह से ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और जेपीसी में जाने के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ आगे फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है?
देखिए, यदि हम आज की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और जो जानकारी मिली वो यही मिली कि कैबिनेट ने जो प्रस्ताव है ये वन नेशन वन इलेक्शन का वो पास कर दिया है। अब वो पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद में वो निश्चित तौर पर कमेटी के लिए जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति जो थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ में उन्होंने तकरीबन 12 से 13 बैठकें की हैं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बैठक करने के बाद में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि आखिर कैसे संभव हो पाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। शुरुआती दौर में जब हम आजादी के बाद की बात करें तो उस दौरान पर लगभग 15 से 20 सालों तक लगातार जो है पूरे राज्यों के और देश के चुनाव एक साथ ही होते रहे, लेकिन फिर सरकारें बीच बीच में गिरती रही और फिर तमाम सारी अलग अलग परिस्थितियों के चलते, सर्कमस्टेंसेस के चलते सरकारें बीच में बनने लगी और फिर उसके बाद में जो क्रम था एक ही बार में देश का और विधानसभाओं का और लोकसभा का आम चुनाव होने का जो क्रम वो टूट गया और उसके बाद में अलग अलग इलेक्शन होने लगी। प्रधानमंत्री के आने के बाद में, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में उन्होंने लगातार पिछले कई सालों से 5-6 सालों से लगातार वो ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र एक टैक्स की भी उन्होंने बात की थी, बहुत सारी चीजों की बात की। उसी के चलते एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जो है एक कमेटी बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वो कमेटी ने तकरीबन 12-13 बैठकें की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ डिस्कस किया कि आखिर संभव होगा तो कैसे होगा। यदि एक बार में पूरे देश भर में इलेक्शन कराए जाते हैं, आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव, तो उसमें लगभग कितना खर्च आएगा और जब वो अलग अलग होते हैं तब कितना खर्च आता है। उसके अलावा न सिर्फ खर्चे की बात की जाए बल्कि लोगों को और आचार संहिता लगती है, उसके चलते बहुत सी चीजें बाधित हो जाती हैं, विकास के काम नहीं हो पाते। इन तमाम सारी चीजों का हवाला देते हुए एक लंबी चौड़ी बड़ी भारी रिपोर्ट तैयार की गई है। उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आज कैबिनेट को मंजूरी दे दी है। जब पटल पर वो बात आएगी निश्चित तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने अपनी बात कमेटी के सामने रखी थी, रामनाथ कोविंद के सामने रखी थी, वो तमाम लोग अपनी बातें पार्लियामेंट में रखेंगे। लेकिन पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पास होने के बाद में कब तक संभव हो पाता है कि 2029 में या 2029 के बाद 2033 में कब 34 में कब ये एक साथ पूरे देश के विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो सरकार की चुनौती है वो उसे पास कराने की है। तो जब पटल पर आएगा उसके बाद में किस कमेटी के पास जाता है, जेपीसी के पास जाता है या किसी और कमेटी के पास जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया हमें सारी जानकारी देने के लिए। बट बने रहिए हमारे साथ में, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और हम फिर आपके पास आएंगे। वी आर गेटिंग यू सम ब्रेकिंग न्यूज एट दिस पॉइंट इन टाइम. As the stage is set for the Sansad Samvidhan debate, the BJP and the Congress party issue whip to its MPs. A whip has been issued for both 13th and 14th December. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time. As far as the Sansad Samvidhan debate is concerned, the BJP and the Congress party have issued whip to its MPs, and the whip has been issued for both the days 13th and 14th of December. My colleague Himanshu continues to be with us. हिमांशु, ये बताइए कि संसद संविधान डिबेट जो कल से शुरू होने वाला है, इसको लेके विप जारी की गई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। इसके पहले राहुल गांधी ने चिट्ठी भी लिखी है लोकसभा के स्पीकर को। क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल, किन मुद्दों पे डिस्कशन होगा, क्या हाउस फंक्शन होगा या नहीं, क्योंकि अभी तक विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक पूरे तरीके से वॉश आउट ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक का सेशन चला है, निश्चित तौर पर कुछ भी बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाया है। और जहां तक यदि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें ओम बिरला की, तो उनका वो जाने ही इस बात को लेकर जाते हैं कि वो रात को 11-12 बजे रात तक जो है संसद की कार्यवाही चलाते हैं और प्रोडक्टिविटी जो संसद की है उसको बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी तक इस सेशन में, विंटर सेशन में किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाया है। तो सरकार तो यही चाहती है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल है, जैसे कल और परसों के दिन हम बात करें 13 और 14 तारीख को तो संविधान को लेकर चर्चा होनी है और निश्चित तौर पर संविधान को लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी उसमें रिप्लाई दिया जाएगा, विपक्ष की तरफ से उसमें सवाल पूछे जाएंगे, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा।
14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें अपना रिप्लाई करेंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ इस चीज में इस संविधान के बहस के दौरान में बोला जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लगातार सुबह जब 10 बजे के आसपास पार्लियामेंट शुरू होती है तो विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो मकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं, जहां से सभी सांसद जाते हैं और वहां पर उनकी जो डिमांड्स हैं अलग अलग चीजों को लेकर वो करने लगते हैं, तख्तियां दिखाने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। तो अभी तक तो संसद बहुत अच्छे से नहीं चल पाई है, लेकिन पूरी उम्मीद सरकार को भी है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बोला जाता है कि सरकार और सरकार के मंत्री खुद नहीं चाहते कि संसद चले, क्योंकि वही सदन में खड़े होकर नारेबाजी करने लगते हैं। तो जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ये चाहते हैं कि सदन चले, लोकसभा चले और लोकसभा में जो पेंडिंग बिल हैं वो पास हों। राज्यसभा में भी लगातार हम देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है और उपराष्ट्रपति के भाषण के बाद में, उपराष्ट्रपति की कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद में लगातार उनका भी विरोध चल रहा है। तो कोशिश यही है सरकार की कि सदन चले और जो पेंडिंग बिल हैं उन पर चर्चा हो और वो पास हो सके। अब देखने वाली बात है कि एक हफ्ता जो आने वाले दिनों में बचेगा, कल और परसों का दिन छोड़कर 13 और 14 तारीख को छोड़कर जो अगला हफ्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद में फिर संसद का ये वाला सत्र समाप्त हो जाएगा। उस एक दिन में और आगे के 2 दिनों में तकरीबन 7 से 8 दिनों में सरकार क्या कुछ चर्चा करवा पाती है, ये देखने वाली बात होगी और क्या कुछ बिल पास होते हैं। लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि चर्चा हो और जो महत्वपूर्ण बिल है वो पास हो सके। जी बिल्कुल।